See, I am in full support of the cookies when they say we want development. We want, we want what Imphal has. We want, equal opportunities. I'm in full support. Why should they not have it? I am not in support if you ask for a separate state. I am not in support if cookie groups don't lay down their arms. Dissent cannot turn into anarchy. हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं था, अच्छा, रिकमेंडेशन सजेशन था, कि वी सजेस्ट दैट यू कंसिडर recommendation or including them in the scheduled tribe list. Whether this was the High Court's job or not, a legal person can tell you better. But from my point of view, कोई दिक्कत नहीं यार. I mean, we can recommend, we can suggest, because that is not the end of the process. State government ऐसे नहीं decide कर सकता है. अच्छा, उसके बाद में भी NCST जाएगा, Tribal Research Institute का, TRI का कुछ input होएगा. There'll be many different levels that it will have to go through for us to, for the central government to include a group in the scheduled tribe list. अच्छा, फिर contest भी होएगा, I'm sure. तो ये कोई overnight process तो है नहीं. This is a long. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो vested interest हैं, उनका कहीं ना कहीं, जैसे CA में हमने देखा था कि वो मिस गाइड किया गया, लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाया गया, तो उसको मतलब पूरा तरीके से एकदम उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, बट उसका नेगेटिव परसेप्शन बन गया. तो ये भी कहीं ना कहीं एक लगता है कि करेक्ट, बिकॉज आप देखिए गोल पोस्ट बदल चुका है. स्टार्टेड विद शेड्यूल ट्राइब लिस्ट इंक्लूजन एंड देन वेंट ऑन टू वी वांट 6 शेड्यूल. ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला डिबेट चालू हो गया. हाँ, तो मतलब आपने चालू कहाँ से किया है, जा कहाँ रहा है, I mean, what is the goal post? What is it that you wanted to achieve? Number 2, I have also heard on ground, I'm not sure if, I've heard it on ground, I haven't seen it myself, that there were people who were armed with automatic weaponry in lungis. Alright, lungi इस साइड पे नहीं पहनते, ये म्यांमार के साइड पे पहनते हैं. So, has infiltration played a role? मैंने उस ट्विटर पे भी थ्रेड देखा है, वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा था. Correct. See, I am in full support of the cookies when they say we want development. We want, we want what Imphal has. We want, equal opportunities. I'm in full support. Why should they not have it? I am not in support if you ask for a separate state. I am not in support if cookie groups don't lay down their arms. Dissent cannot turn into anarchy. आप प्रोटेस्ट करिए, ये आपका हक है. ये कुकीज का भी हक है प्रोटेस्ट करना, मगर सेम वे मैतीस का भी हक है टू डिमांड फॉर अ शेड्यूल ट्राइब इंक्लूजन इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट. डिमांड करने से कौन रोक सकता है? अब आपका रिएक्शन ऐसा होएगा. और इसमें अंतर क्या है अभी, क्योंकि रिजर्वेशन की जब तक बात आती तो कहते हैं कि SC OBC में मिलता रहा है मैतीस को, तो ये शेड्यूल ट्राइब ST स्टेटस स्पेसिफिकली क्यों मांग रहे हैं? लैंड की वजह से. आपको लैंड भी मिलेगा. शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, so on and so forth. वो भी आपको basically what the Maitis say is we want a level playing field. सही बात है. कि हमको प्रिविलेज नहीं चाहिए, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. नहीं, लेवल प्लेइंग देखिए ना कितना मतलब सिमेट्री है कि 55% जो पॉपुलेशन है उसके पास 10% लैंड है राइट का. करेक्ट. अब इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ रहे हैं वो 10% पे ही खा रहे हैं. वो 10% पे भी खा रहे हैं, मगर फॉरेस्ट लैंड पे उनका हक है क्या? वहां पॉपी कल्टिवेशन हो रहा है. See, after this, one of the crackdowns was against drugs. Drugs is a huge problem, because drugs is what funds, insurgency, things like that. Also, there was Manipur at one point of time had a rampant level of HIV. Because of the amount of drug use at one point of time that was happening. Because heroin वगैरह आप तो you'll take it, how do they say? Yeah, you'll inject it, right? So one of the reasons was this. So they should be even more against any sort of drug transactions that are happening. So when the chief minister cracked down on ये poppy cultivation जो था, that time ये झगड़े चालू हो गए. तो ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है, ये पिछले 2-3 महीने से चल रहा है. एंड इसमें हिस्टोरिकल एनिमोसिटी भी है. ऐसा नहीं है. अच्छा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इन दोनों ग्रुप्स के बीच का? मतलब there isn't that sort of a background in terms of that there's always been clashing and for the same reasons. Okay. So ऐसा नहीं है. Uncomfortable और unstable equilibrium बना हुआ है यहाँ पे. And मैं तो honestly मैं सोचती हूँ how is it possible? Because you have populations that have lived side by side. There was a point pre-independence where everybody had equal rights to all natural resources of the state. तो अब ऐसा क्यों है? ये समझने की बात है because this country doesn't deserve it. हमारे पास हमारे और प्रॉब्लम्स हैं that come from the outside that we have to deal with. We don't deserve our own brothers fighting with each other. अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, इवन नागाज में देखोगे, तांगखुल जो ट्राइब है उसमें बड़ी सिमिलैरिटी, मतलब there's respect that is shown Meitei rituals में, that is shown to them. Vice versa. There have been princesses from Manipur that have been married in Tripura.
यू नो दैट यू नो ऐसा मतलब इंटरेक्शन चलता है, आप सोचो ना कैसे इंटरेक्शन नहीं होगा अगर आप साइड बाय साइड रहे हो, यू नो कैसे कोई भी आपको, यू नो बेसिकली व्हाट द मैतीज से इज वी वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सही बात है। यू नो कि हमको प्रिविलेज नहीं चाहिए, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग देखिए ना कितना मतलब सिमेट्री है कि 55% जो पॉपुलेशन है उसके पास 10% लैंड है राइट का। करेक्ट। अब इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ रहे हैं वो भी 10% पे ही खा रहे हैं। वो 10% पे भी खा रहे हैं, मगर फॉरेस्ट लैंड पे उनका हक है क्या? हाँ। वहां पॉपी कल्टिवेशन हो रहा है। See, after this, one of the crackdowns was against drugs. Drugs is a huge problem, you know, because drugs is what funds, you know, terrorism, insurgency, things like that, you know. आई थिंक कि एक सॉल्यूशन ये हो सकता है शायद, क्योंकि जो डिवीजन हुआ है स्टेट्स का, इट्स डन इन अ मैनर दैट इज नॉट पैलेटेबल टू एनीवन, सो मे बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाउंड्रीज माइट बी अ सॉल्यूशन। From my point of view, मुश्किल है ये solution, मुश्किल है। because the average tribal is extremely connected to his land, you know, is extremely emotional about it, you know, उनका सबसे ज्यादा attachment उनकी जमीन से है। बट जमीन तो ठीक है, वो तो रह सकती है, बट इन मतलब क्या उनकी जो आज की आइडेंटिटी मान लो जैसे मणिपुरी है, क्या वो उससे भी उतना ही रिलेट करते हैं? Absolutely, so territorial integrity इन लोगों के लिए बहुत है, ओके you know, so ये you know that change will be very difficult and I don't think that will be appreciated, अच्छा you know, क्योंकि आप सोचो ना, अगर you say oh this is Kuki land, मैती अग्री करेगा क्या? बिल्कुल। यू नो अगर आपको अरे इम्फाल इज ओनली फॉर मैतीज, कुकी एग्री करेगा, नागा एग्री करेगा, नहीं करेगा। सो दिस विल बी अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, दैट इज यू नो वी बीन डिवाइडेड ऑन सो मेनी लेवल्स, यू नो रिलीजन एंड रेस एंड दिस एंड दैट, यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, यू नो यू आर एन इक्वल स्टेक होल्डर एंड दैट शुड बी प्रायोरिटी इन योर माइंड। अब यू नो अब एथनिक आइडेंटिटी पे आप यू नो झगड़ा करना चालू करो, यू नो तो इसका तो कभी एंड ही नहीं है ना। सो सिविल सोसाइटी हैज टू कम टू अ कंसेंसस कि ऐसा वायलेंस इज नॉट बेनिफिशियल। पिछले 5-6 साल 8 साल में जितना उनने डेवलपमेंट देखा है, परसेप्शन बदला है नॉर्थ ईस्ट का। 15 साल पहले कोई कहता था कि मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा छुट्टी के लिए, अब फैशनेबल हो चुका है कि हाँ लेट्स गो देयर फॉर ट्रैकिंग, ओ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ओ आपने एसएमईज खाना खाया है, ओ आई एम गोइंग टू अ नागा रेस्टोरेंट, इट्स द रेज, इट्स फैशनेबल, यू नो, एंड दैट इज व्हाट इट टेक्स कि आप मेन स्ट्रीम बनो, ये दिस इज व्हाट इट टेक्स। आप ब्रिटिश हैड रिकॉर्डेड इवन द मैतीज एज अ फॉरेस्ट ट्राइब, तो सबका स्टेक होल्डिंग इन लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वाज ऑल द सेम। अच्छा ऐसा नहीं कि अभी कैसा है कि मैतीज आर यू नो मे बी स्टेक होल्डर्स इन 10% ऑफ द लैंड एंड द रेस्ट इज विद द ट्राइब्स, यू नो। इतना डिवाइड है? ऑफ कोर्स इतना डिवाइड है। 10% लैंड है सिर्फ मैतीज के पास और Correct. 90% करेक्ट कुकीज के पास है। कुकीज, नागाज, ये सब ट्राइबल्स में आते हैं ना, तो इन सब के पास है। हाँ, नाउ दैट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आप देखो प्रेशर इन इम्फाल, लोकताक लेक एरिया भी है, वहाँ भी सेटलमेंट है। सो प्रेशर देखो इन जगहों में कितने लोग रह रहे होंगे, एंड क्योंकि ट्राइबल्स भी इन जगह इम्फाल आती हैं, तो इट्स नॉट एज ए खाली मैती पॉपुलेशन है, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। मगर मैतीज कांट बाय लैंड एनीवेयर एल्स बिकॉज इट कम्स अंडर यू नो ट्राइबल लैंड, बट ट्राइबल्स बाय कर सकते can हैं। buy. वाह। अब यू नो इसमें आप सोचिए लॉजिकली, ऑनेस्टली लाइक लॉजिकली अगर मैं देखूँ, पॉपुलेशन अगर लेट्स से 15 लाख भी हो, हाँ मैतीज की, आई डोंट नो द एग्जैक्ट पॉपुलेशन, लेट्स से 15 लाख है, हाँ 15 lakh is going to convert into what in the next 20 years, you know, and obviously फिर illegal infiltration हो रहा है, you know, there's tribal settlement there also, तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है? म्यांमार से। किन का हो रहा है? Again the Chin tribes, so जब से dispensation वहाँ बदली है, हाँ, और ये क्या है चिन ट्राइब्स? Chin tribes is a tribe under which बड़े सारे सब tribes होते हैं, अच्छा you know, जिसमें जैसे cousins होते हैं ना, ठीक तो ठीक। Cookies also consider themselves cousins, you know, Okay. Mizos also consider themselves cousins, तो you know there is some sort of familiarity between them. इसमें one thing we have to be very careful of looking at is either or, you know, whether it's the Cookies, whether it's the Meiteis, whether it's the Nagas, you know, they're all citizens of this country, you know, that we shouldn't, you know, for us it's not our position to choose sides per se, but the infiltration that is happening we have nothing to do with, in my point of view. क्योंकि ये जो पॉपुलेशन आ रही है, ये ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश जा रही है, कोई रीज़न है ना कि यहाँ आ रही है। और बड़े लोगों ने डिबेट किया कि रेफ्यूजीज जैसे आने देना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए। यू कम थ्रू द लीगल प्रोसेस, यू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, यू हैव अदर कंट्रीज टू गो टू, यू नो, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। आप यहीं क्यों आना चाह रहे हो और हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं इस इन्फिल्ट्रेशन को? बट उनका आने का कारण क्या है? आने का कारण है क्रैकडाउन हुआ है म्यांमार में,
against And them these- because they were, they also had separatist movements there. हाँ. See, ये complicated बात है. Let me come to this second. Let me clarify about this land mass division, the fact of the matter is that everybody had equal stakeholding throughout, history. It is only after independence that the Meiteis were removed from being called forest tribes or scheduled tribes. लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उन्हें that time क्यों नहीं object किया. That time उन्होंने object नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं था repercussions क्या होंगे. In terms of scheduled tribe list का मतलब क्या है? अब पता चलता है यार reservations मिलते हैं 33%, you have an education, you have an administration, it's not an equal playing field. तो वो चाहते हैं कि उनको इंक्लूड किया जाए और ये अक्रॉस इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत कम्युनिटीज के साथ हुआ है that they don't match. मैं नहीं कह रही हूँ कि Meiteis don't match the exact criteria of a scheduled tribe, but मैं कह रही हूँ ऐसा हुआ है in other parts of India जहाँ जो लोगों ने exact characteristics अगर नहीं मैच किए हैं तो भी उनको इंक्लूड किया गया है. और Meiteis का तो हिस्टोरिकल क्लेम है ना. तो ये असिमेट्री ये हमारा ही किया हुआ है कर्म इंडिपेंडेंस के बाद. ध्यान ही नहीं दिया. नहीं, ध्यान तो दिया. देखो ये क्या किया है हमने. ये ध्यान देने का ही परिणाम है. करेक्ट. मगर लाइक आई सेड कि हम जिस नजर से इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वो अभी भी वही सब्जेक्ट्स है जो कॉलोनियल बना के गए थे दूसरी कंट्रीज को और दूसरी पॉपुलेशंस को समझने के लिए. तो हमने जो चश्मे पहने हैं दोज आर द लेंसेज ऑफ द अदर. हम अपनी पॉपुलेशन को एज द अदर क्यों पढ़ रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी ICS जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स ब्रिटिश के टाइम पे होता था, उसके लिए एक सब्जेक्ट बनाई गई थी कि भैया जब आप दूसरे कंट्रीज में जाओगे तो आप ये पॉपुलेशन को इन पैरामीटर्स के साथ पढ़ना. और वही हम आज भी पढ़ रहे हैं. और शायद वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन भी आते होंगे UPSC में. तो आर्यन, आई हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जो हमें ना इस कंट्री में साइंसेस को कहते हैं एग्जैक्ट साइंसेस हैं और ये ना सूडो साइंसेस है. भाई सूडो साइंसेस हैव क्रिएटेड योर एंटायर पॉलिटिकल नैरेटिव. और हम सोशल साइंसेस को ध्यान में नहीं रखते. आई एज अ नॉन फिजिसिस्ट मैं फिजिक्स के ऊपर किताब थोड़ी ना लिखूंगी. सो लोग जिनके पास सोशल साइंसेस का फाउंडेशन नहीं है वो कैसे लिख लेते हैं हमारे सिविलाइजेशन या हमारे सोसाइटी के बारे में? वो क्या होता है, इवन अगर उनका इंटेंट अच्छा हो, क्योंकि उनके पास दे डोंट नो व्हाट आर द थ्योरीज यू मस्ट बी लुकिंग एट, अटैकिंग, चेंजिंग, कन्फ्रंटिंग, तो क्या होता है कि वो नैरेटिव और बिगड़ जाता है. सो दीज आर मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स. Now coming back to your question which is related to this about chins कौन है और म्यांमार में क्या हो रहा है. You see the problem is that ये borders porous है. And porous का मतलब highly forested है. ये terrains को काफी हद तक इंसर्जेंट सबसे अच्छा पहचानते हैं क्योंकि they have played in these routes. Exactly. These are the routes that save them, so they understand it better than a lot of other people. मगर हमने तो काफ़ी फेंसिंग भी की है. अभी जब द ऑनरेबल होम मिनिस्टर वाज इन मणिपुर, उन्होंने कहा था कि काफ़ी हद तक मणिपुर की फेंसिंग हो गई है. 80 किलोमीटर बचा है जिसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं. तो दैट विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड. प्लस हाई टेक्नोलॉजी बॉर्डर फेंसिंग है. सो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, दे विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले पता नहीं क्यों नहीं था. इतना टाइम क्यों लगा हमें लगाने को, बट एनीवे अब लग गया है. नाउ द पॉइंट इज दैट म्यांमार में जब से मिलिट्री हुंता आई है, रेजिम चेंज हुआ है, थोड़ा क्रैकडाउन बढ़ा है ऑन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स. और वहाँ काफ़ी टाइम से डिफरेंट बिकॉज वहाँ भी एथनिसिटीज बहुत अलग अलग हैं. तो देयर हैव बीन मूवमेंट्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स. और वहाँ से हमारे मतलब कितने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के जो लोग हैं वो आते रहे हैं यहाँ पे. NSCN वहीं से फंक्शन करता है. क्योंकि लाइक आई सेड देयर इज अ लॉट ऑफ relation between tribes on that border, tribes on this border, which the British were not great. तो उन्होंने वहाँ पे भी कचरा कर रखा है जैसे मैकमोहन लाइन और वो सब. मतलब I don't know ये borders इनने कैसे पुल किया. अब अफ्रीका को देखो ऐसे स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट है. I mean it makes no sense. तो यहाँ भी इनने गड़बड़ कर दी. हाँ तो काफी ये एंथ्रोपोलॉजी का कमाल है. मतलब इतनी महान समझ हो ना. मतलब लिटरली लाइक आप पढ़ के आए हो, उसके बाद भी सब्जेक्ट हो, आप यहाँ रहे हो नॉर्थ ईस्ट में इतने टाइम, उसके बाद ये पुल बॉर्डर्स लाइक दिस इज रिडिकुलस. बट एनीवे अब उन्हें किया जो किया. काफी ट्राइब्स उस साइड है, काफी ट्राइब्स इस साइड हैं. ट्राइब्स में भी सब ट्राइब्स होते हैं. सब कंसिडर देमसेल्व्स रिलेटिव्स, कजिन्स. तो नागा इंसर्जेंसी के भी टाइम पे जब चाइना में ट्रेनिंग मिली थी, काफी रूट यहाँ से था. China has always used these disturbed areas as its training grounds. We've maintained a good relationship with Myanmar. मगर 100% solution नहीं होता है ऐसी चीज़ों में. तो क्योंकि वहाँ क्रैकडाउन हो रहा है, these people are coming into मणिपुर, मिजोरम. अब मिजोरम में I believe 30,000 रेफ्यूजी रजिस्टर है कि 30,000 लोगों की रजिस्ट्री है कि एज रेफ्यूजीज आए हैं. ओवर द ईयर्स या अभी रिसेंट में? अभी मोर रिसेंटली. मगर मणिपुर में ऐसा नहीं है. बिकॉज इट्स ऑल इलीगल इन्फिल्ट्रेशन. अब वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन में now these are not citizens of India.
You know, so let's make it very clear. When I talk about illegal infiltration, they might be cousins of cookies or this or that. They are not cookies. In terms of, they are not the same people as we have on this side of the border. They are our people. Cookies are our people. But, you know, they feel that proximity कि हम जा सकते हैं. काफी sympathizers भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, you know, they should be allowed to settle it. अरे भाई, आप रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में कैसे सेटल हो सकते हो? आप इलीगली अगर आओ तो आपको कौन रहने देगा? आप अमेरिका जा सकते हो विदाउट अ वीजा? नहीं जा सकते हो ना. तो और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैतीस के पास अपने लैंड के ऊपर वो वाला कंट्रोल नहीं है जो ट्राइबल्स का है. करेक्ट. तो क्या होएगा कि आई थिंक द लार्जर क्वेश्चन हियर इज एवरीबडी हैज टू थिंक अबाउट एवरीबडी एल्स. यू नो, कुकीज को भी सोचना चाहिए कि भाई डेमोग्राफिक चेंज तो होएगा, और डेमोग्राफिक चेंज होएगा, इट विल, यू नो, द अदर ट्राइब्स विल फील थ्रेटेंड. You know, अब other tribes feeling threatened, you know, why should that not be the case? You know, you know, in Delhi, if we start having a massive demographic change, we will also feel that, you know, is it going to harm us in some way? This, that. Also, the other fact is that this is a question of national security. The kind of people coming into infiltration, you know, how do you know who they are? How do you know they're not people who have been trained in China? This has happened before. ऐसा तो है नहीं, ये पहले नहीं हुआ है. You know, Naga insurgents used the route given in Myanmar to go to China to have meetings. So this is not a new thing. So we cannot see, it's not a question about हमारे cousins हैं, हमारे relatives मेरे भी घर में आते हैं. They don't dip into my bank account and they don't dip into, like, you know, my resources, and they don't stay there forever. वो वापस चले जाते हैं. You know, so we have to keep this perspective in mind कि हमारी national security can never be, you know, questioned. That comes above and beyond religious differences, ethnic differences, cultural differences, anything else. That has to come first. Now, if we move with that point of view in mind, then automatically you have a clear stance on